بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ سے تقوی اختیار کرنا تو اللہ پاک کا بہت بڑا کرم احسان ہے کہ جس نے تمام مخلوقات میں ہمیں انسانوں میں بنایا اور انسانوں میں پھر سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا نصیب فرمایا، ایمان کی دولت سے نوازا اور اسلام عطا فرمایا۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اللہ پاک نے اس زمین آسمان کو بنایا اور اس کے اندر جینے کے طریقے بتانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ اس سے پہلے کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا جنات سے آباد کی گئی تھی، جس میں ابلیس جو ان سے فرشتوں کا سردار بھی ہو چکا تھا، اس کے اندر بڑائی آئی اور جب آدم علیہ السلام بنا دیے گئے تو ان کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور دلیل بھی دیا کانا خیر ملو، میں اس سے بہتر ہوں، دعویٰ کیا اور پھر وہ بھی دلیل دیا کہ زمین نیچے رہتی ہے، آگ اوپر میں رہنے کا۔ تو برتری کا اس نے دلیل بھی دیا، دعویٰ بھی برتری کا کیا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی کیا، حکم عدولی بھی کیا۔ اور جب اللہ پاک نے ان کو لعنت کا توق پہنا کر ذلیل کرنا چاہا تو اس وقت اس نے دعا بھی کر لی کہ فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک مہلت دے دیا جائے، اور چیلنج بھی کیا کہ ہم آپ کے لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے نہیں دیں گے، ہم ان کو بہکائیں گے، وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر کو آپ شکر کرنے والے نہیں پائیں۔ تو اللہ ایک ہے اور وہی پاک بھی ہے اور بے عیب بھی ہے۔ تو اللہ پاک کے ایک تو ذات ہے جو اللہ کے لفظ سے جانا جاتا ہے، اور صفاتی 99 نام ہے، یعنی 99 صفات۔ تو یہ ذات و صفات پر ایمان لانا اور ان کے حکموں کو ماننا، یہ ایمان اجمالی ہے۔ اب اس میں جو صفات ہے وہ صفات اللہ لیست عین ذاتی، صفات جو ہے ذات کا عین بالکل وہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ صفات اس کے اندر کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے انسان کا ہنسنا صفت ہے، رونا ایک صفت ہے، بولنا ایک صفت ہے۔ تو یہ بولنا، رونا، ہنسنا یہ انسان نہیں ہے، بلکہ انسان کے صفات ہے۔ گورا ہونا، کالا ہونا، بعد میں پھر عالم ہو جانا، ان پڑھ رہ جانا، یہ صفات ہے۔ تو اللہ کی ذات و صفات ایک ہی ہے۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ مکی کے انبیاء کرام کو بھیجا گیا تو کسی زمانے میں بنی اسرائیل کو فضلتکم علی العالمین، اللہ کے حکموں پر چلنے کی وجہ سے ان کو پورے عالم میں برتری بھی عطا کی گئی۔ تو اس طریقے سے اللہ پاک نے قرآن میں بتایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اگر میں چاہتا، اللہ چاہتا سب کو ہدایت دے دیتا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی مشیت کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ کی مشیت وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، آپ کے اندر جو چاہت پیدا ہوتی ہے تو پہلے اللہ چاہتا ہے، اس کے بعد بندے میں چاہت آتی ہے۔ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں اتنی برائیاں ہو رہی ہیں
गलत कार्यां मजालिम तरह तरह के। आखिरी दौर में तो उस फितनों को, उन चीज़ों को ही बताना मुश्किल है। तो क्या ये अल्लाह की मशीयत से हो रहा है? तो आपको कहना चाहेंगे कि अल्लाह पाक ने जन्नत भी बनाया है और जहन्नम भी बनाया, और जो उनके हुक्म को एक मशीयत होती है और एक मर्जी होती है जिससे खुश होते हैं। तो खुशी वाले काम को बताने के लिए जिसमें अल्लाह राजी होता है, खुश होता है, एक लोग इकराम से नवाजा इंसान को और अम्बिया कराम को भेजा। तो इसमें भी अल्लाह पाक ने कहा वलो शाअल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, अल्लाह अगर चाहता तो एक ही उम्मत बना देता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे शुरू में पैदाइश हुई, क्या बोलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। तो अल्लाह पाक अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले दुनिया में भेज देते और सारे क़यामत तक के सारे लोग उसी उम्मत में होते, तो एक उम्मत ही बना सकते थे। अल्लाह पाक ने भी बताया कि अल्लाह चाहता तो एक उम्मत बना देता। तो जन्नत को भी भरना है और जहन्नम भी भरा जाएगा। जहन्नम दाखिलीन, जहन्नम को भी भरेंगे। तो जाहिर है कि अल्लाह को मालूम है कि बनाने का सबको बनाया उसने अपनी कुदरत से, और उसके अंदर जो कमी बेसी नहीं रखा गया, सबको एक ही फितरत से इस्लामी पर इस इंसान को पैदा किया। लेकिन जिसने गलत काम की वजह से अपने फितरत को बिगाड़ लिया तो वो गलतियों पर जाता है और वो जहन्नम का ईंधन बनी। तो अल्लाह पाक के सिफात को ऐसा नहीं था कि मक्के के अंदर सारे लोग ही मुशरिक थे, कुछ लोगों का उस वक्त भी मोबाइल थी। कौन एक शायर था, कहते थे रब्बुन वाहिदुन हम अल्फ रब्बा, हम एक रब को मानेंगे कि 1000 रब को मानेंगे। इजा तक कसमतुल उमूर, अब काम तकसीम कर दिया तो रब भी तकसीम कर दिया, ऐसा क्या गड़बड़ होता है। तो गौर करके देखें कि वो कहना ये चाहते थे कि उस एक पाक परवरदिगार है और सारे सिफात उसमें हैं। अब हर एक सिफत को, हर एक खूबी को अलग अलग रूप दे दिया जाए, जैसे कहार होना, जब्बार होना, अजाब देना, ये सब ये सिफात है। तो ये इसके जरिए नुकसानात का लाइन है। और एक हुआ है कि अल्लाह रहमत है, रहीम है और रहमान है। ऐसे गौर करने से बुजुर्गान दीन ने बताया कि 2 सिफत, जो रहमान की सिफत है और जो रहीम की सिफत है, इसी में सारे सिफात आ जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अलग अलग सिफात बताया गया है। रहमान तो रहमत की जब इब्तिदा हुई, जब मखलूक़ात को शुरू किया गया मकंजन मखफियन के बाद में, तो उस मखलूक को मोहब्बत की बुनियाद पर और मार्फत के लिए पैदा किया। तब ये सिलसिला तो शुरू हुआ जो रहमान की सिफात तक है। और रहीम वो है कि उसका अंजाम क्या होगा, उसका जो अच्छा काम किया उसको बिल्कुल मुकम्मल रहमत दे दिया जाए। तो मुकम्मल बिल्कुल रहमत मिलने का मतलब है कि जो रहमत के काबिल नहीं उसको जहन्नम में झुक जाए। तो सिफत रहमान और रहीम इतना वसी है कि इसी के अंदर सब कुछ आ जाता है। लेकिन अल्लाह के 99 सिफात को बताया गया है। तो अलग अलग सिफात को, ये सिफात आईने ज़ात नहीं है, यानी जो ज़ात है इंसान का वही सिफत भी वही है, वो नहीं। सिफात अलग है, ज़ात अलग है, लेकिन एक साथ है, अलग भी नहीं कर सकते। जैसे हंसी है कि हंसी को कहीं बाहर में दिखा दिया जाए इंसान से, ऐसा नहीं है, इंसान के साथ वाबस्ता है। रोना इंसान की सिफत है तो इंसान के साथ है। तो इसका हुआ कि आप, अल्लाह पाक ने बताया कि आप किन्हीं से सवाल करें कि इस ज़मीन आसमान को किसने बनाया है, तो बताएंगे यक़ूलुल्लाह, वो कहेगा कि जो सबसे बड़ी शक्ति है अल्लाह है, उसी ने इसको बनाया है। तो फिर ये भटकते क्या है? मुशरिकीन मक्का से पूछा गया कि तुम इन लोगों को जो बाद में पैदा हुआ खुदा की बनाए मखलूक, और मखलूक का भी तुमने बुत बना करके पूजना शुरू किया, तो ऐसा क्यों करते हो?
कर लेकर रबून जुल्फा, थोड़ा सा खुदा के करीब हो जाएंगे। तो गोया कि इनको कुर्बत का जरिया समझते, खुदा उनको भी नहीं समझते, लेकिन कुर्बत का जरिया लोगों को बताते थे। तो अल्लाह पाक जो है कि करीब होना, ये तो अल्लाह पाक ने जो है तरीका बताया। ये करीबु मिनल मोहसिनीन, ये एहसान वाले अल्लाह के करीब हैं। तो एहसान यह है कि तुम ये ध्यान करो कि मुझे अल्लाह देख रहा है, यह एहसान का एक दर्जा है। और एक यह है कि अल्लाह को आप देख रहे हैं, ये दूसरा दर्जा है। तो अव्वल दर्जा आपका ध्यान इस दर्जा हो कि आप खुद अल्लाह को देख रहे हो, और अगर यह ध्यान नहीं बनता है तो दूसरा ध्यान बनाओ कि अल्लाह मुझे देख रहा है। तो हर वक्त ये ध्यान रहना इंसान का इस पर जमना, ये करीब एहसान वाले के करीब है। तो कहीं कुरान में लिखा है कि अल्लाह साथी है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ है, और कहीं कह रहे हैं करीब है। तो इस तरह से उसके अल्फाज के साथ साथ उसके हालात भी मुख्तलिफ होते हैं। जैसे खशियत है, इसी तरह से रब्त है। अब मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में आप देखेंगे कि उसके माँ के बारे में कि उसका रब्त पैदा हो, यानी अल्लाह से एक राब्ता पैदा हो, तो वो रब्त को बताया है। फिर वो भी बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है हर रमना अलैहा महाराजा को उसको माँ के अलावा दूध पिलाने वाली का दूध पीना हराम कर दिया था। ये हराम कर देने का मतलब उसकी रूह को बता दिया गया था, ये नहीं कि उसके ऊपर वही नाजिल हुई और वो हराम समझ गई। तो अरवाह को अल्लाह पाक ने बता दिया कि रूह को बता दिया कि तुम जो पैदा हुई हो तो अब इसके साथ में हो, तो तुम दूध पिलाने वाली का दूध मत पीना। तो इसलिए फिरौन के घर में आए तो उसने दूध पीना नहीं पीना, दूध पिलाने वाले जितने आए किसी का दूध नहीं पिया। माँ जब पहुँच गई अल्लाह ने उसको भेज दिया, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया था कि हम इसको आप दरिया में डाल दीजिए, हम आपके पास लौटा देंगे। तो अल्लाह पर रब्त होने की वजह से उसको डर खौफ नहीं हुआ। नहीं तो एक औरत अल्लाह की तरफ से राब्ता ना हो तो अपने बच्चे को ताबूत में भरना और पानी में डाल देना ये नहीं कर सकती है। उसकी मोहब्बत है बच्चा नज़र से दूर ना हो, और इतना बड़ा कारनामा कि उसके लिए बख्शाश बनाकर उसमें डालकर फिर उसके बाद पानी में डाल देना, ये तो और मरने का लाइन है। लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में बात डाला था कि नहीं ये तुम्हारे पास लौटा देंगे। तो उसकी तदबीर भी हुई और उसके बाद उस महल में भी गए और फिर जैसे समझिए परवरिश के लिए बच्चे को लौटा दिया। तो अल्लाह पाक किसी के दिल से राब्ता करते हैं, बताते हैं ये ज़बां पर नहीं उनका जिक्र जले उनसे, लेकिन है हर वक्त रब्ते खफी। ये रब्ते खफी क्या होता है? पोशीदा राब्ता। तो पोशीदा राब्ता यह है कि कल्ब जिसका जाकिर हो गया तो हर वक्त अल्लाह अल्लाह कहता रहेगा, और उसके कान में आवाज़ भी आएगी जब सुनना चाहेगा, और फिर उससे एक अनवार बनना शुरू होगा। ये रब्ते खफी है। और जब इस दर्जे का ध्यान हो जाए कि अल्लाह तू ही तू है, समाया है जिस दिन से नजरों में तू, जिधर देखता हूँ उधर तू है, तो जिस दर्जे का ध्यान बनेगा, इसीलिए मौलाना मदनी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जज्बे इश्क कुछ दिल में पैदा करो, रूह को जिक्र मौला से जिंदा करो। जिक्र करने वाला जिंदा होता है और न जिक्र करने वाला मुर्दे के जैसा होता है। तो एक तो इंसान का जिस्मानी ग़िज़ा है जो जिस्म मजबूत होता है खा पी करके, और एक रूहानी ग़िज़ा है जो रूह की ग़िज़ा है। जैसे फरिश्ते हैं उनको इबादत के लिए इबादत करता है, उसके अंदर ताकत नूरानियत सब कुछ है, उसका ये इंसान के जैसा मिट्टी के ग़िज़ा नहीं। तो उनके अंदर ताकत है, सिदादुन गिलाजुन, बड़ी ताकत है, बहुत कुछ है। लेकिन उसमें फरिश्तों में काम तकसीम कर दिया गया है। किसी को दुनिया मिटाने के लिए सूर थमा दिया गया है, किसी को जान निकालने के लिए उसके पीछे फरिश्ते लगा दिए हैं उनके साथ देने के लिए, और
मौत जो एक मखलूक है उसका वो फरिश्ता बना दिया गया, उसके कब्जे में दिया गया। मलकुल मौत ने हाथ से नहीं निकालते। जैसे कोई कांटी है उसको कील को निकालना है तो कोई औजार से उसको निकाल लेते हैं। हाथ से निकालेगा तो मुश्किल होगा, लेकिन औजार से निकालेगा तो आसानी से निकल जाएगा। तो ये मौत एक मखलूक है, उसके जरिए से उनको मौत दिया जाता है। तो मौत एक मखलूक है और अल्लाह ने हयात और मौत को पैदा किया है। तो हयात तो वो है जो आप जान रहे हैं कि जब तक जिस्म और रूह मिला हुआ है, एक साथ चल रहा है, तो हयात का मौका है। और जब इन दोनों को अलग कर दिया जाएगा तो ये मौत की घड़ी। तो अलग होना ये मौत है और शामिल रहना ये हयात है, लेकिन खुराक अलग अलग है। जिस्म का खुराक तो दुनिया से पैदा की हुई चीज़ों को बताया नहीं को रज़क़ना हम तय्यबात। दुनिया में जितनी चीज़ें पैदा हुई हैं उनमें जो अच्छी चीज़ें हैं वो मैं इंसान का खुराक बनाया। तो दरख्त अगर आपको नज़र आ रहा है, उससे साया भी हासिल हो रहा है, उसके लकड़ी से काम भी निकाल रहे हैं, उसके छाल और उसके जड़ से आप दवा भी बना रहे हैं, लेकिन उनमें सबसे बेहतर चीज़ उसका फल होता है। तो वो फल आपका खुराक, मसलन आम है तो आम में गुठली भी रह जाता है, लेकिन उस गुठली को खाने का डायरेक्ट कोई तरीका नहीं। उसको तदबीर करते हैं, उसे भी खाते हैं अंदर के, लेकिन जो है उसका आम छिलका नहीं खाते, बीज के गुदा खाते। तो ये इंसान का खुराक है, आला दर्जे की चीज़ों को खाते हैं। इसी तरह हर एक चीज़ों में आप देखेंगे तो इंसान के जिस्म का ये खुराक है और असरात होते हैं। अगर हराम चीज़ों को खाएगा तो बदन के अंदर जो हिस्सा बनेगा वह तो जहन्नम में जाके पाक होगा। इसलिए जिस्म को हराम ग़िज़ाओं से पाक रखना यह भी जरूरी है। और हलाल ग़िज़ा तरीके से खाने पीने का इंतज़ाम करना है। और रूह के जो खुराक है, तो ये इबादत जो है, इबादत करते हैं, इबादत का वक्त मुकर्रर है। उन औकात में जब इबादत करता है तो फरिश्तों की जैसी सिफात उसमें नूरानियत का पैदा होती है। वो पैदा करने के लिए फरिश्तों से मुसावहत के लिए ये चीज़ वक्त वक्त पर नमाज दी गई और इबादत को बताया गया। आप इन नमाज़ों को नहीं देखते कि हर जगह जो है नमाज के साथ ज़कात, नमाज के साथ ज़कात, अकीमुस्सलात वातु ज़कात बताते हैं। तो अमूमी ज़िंदगी में माल का सही हिसाब रखना, अपना नहीं समझना, खुदा का दिया हुआ समझना। जैसे जान को अल्लाह ने दिया है तुमको इस्तेमाल के लिए, तो उस जान से मुतल्लिक जो माल है वो भी अल्लाह के का है और उसके हुक्म के मुताबिक देना हर जगह का। लेकिन कहीं आयत आता है फसल्लि लिरब्बिका वनहर, कि अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तो यहाँ हुक्म देखो दूसरा लाइन का बताना है तो वो बता दिया गया। तो इंसान को जब जैसी ज़रूरत है, जिससे जो चीज़ बनेगा उसके साथ वो चीज़ मिलाते हैं। अब यहाँ आगे मौका है कि जो लोग मजाक उड़ाते हैं, इस्तेजा करते हैं। तो बता गए इस्तेजा का कोई वजह नहीं है कि हमने आपको हौज़ कौसर अता किया है, बहुत से खैर कसीर अता किया है। तो यह जो इन चीज़ों से लोग महरूम है, आपको रहमतुल आलमीन बनाया गया। आपके रहमत के सदके में 1.25 लाख अंबिया कराम हुए, साथ में बैठने वाले 1.25 लाख सहाबा कराम हुए। इस तरह आप तमाम सिफात के मुस्तजमा हैं। तो आगे बताया फसल्लि लिरब्बिका, आप अल्लाह के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी उसके बाद कीजिए। इन्ना शानिया का हुआ लतर, आपका जो ये मजाक उड़ाने वाले लोग हैं ना, वही लोग अबतर होंगे, उन्हीं का नस्ल नहीं चलेगा। तो नज़र से दिखा दिया कि कहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, और इतना दिन गुजरने के बावजूद भी वो अक्सरियत में नहीं, आज के उनकी तादाद कम हो गई। तो इन्ना आतनाम जो बताया कि उन्हीं का नस्ल कम होगा, तो दिखा दिया। तो ये चीज़ें जो कुरान में बताया है वो नज़र से भी देख सकते हैं। हज़रत कमल आलमीन का तो फजीलत दे के भी दिखा दिया कि वो मूसा अलैहिस्सलाम जिनको रोकने के लिए लाखों तदबीरें किया, इसके बावजूद भी अल्लाह ने जब कहा जाओ तुम उसको दावत देकर क्या, तो दावत देने भी पहुंच गए। अब जब दावत दिया तो समझे ये कोई जादूगरी का चीज़ लगता है,
नबी क्या होगा, ये हाथ ऐसे बगल में रखते हैं, ऐसे करते हैं, दरबार रोशन हो जाता है, ये लाठी को रखते हैं, सांप बनता है, फिर पकड़ते हैं, लाठी बन जाती है। यह सब कुछ नहीं है, सब जादूगरी है। तो मदियन के जादूगरों को बुलाया जो, और उनको वो लालच दिया कि तुम्हें अपने मुल्क का कुछ हिस्सा टुकड़ा तुम्हें दे दिया जाए, ऐसे नहीं थोड़ा बहुत इनाम दे दिया जाए। बड़ा इनाम का लालच दे के उसको मैदान में उतारा। तो आपस में बात हुई, पहले आप अपना दिखाएंगे कामयाब है, तो मूसा ने पहले आप ही दिखाएंगे। तो उसने रस्सियों को छोटी बड़ी मोटी बड़ी छोटी जो कम पतली रस्सी है, मोटी रस्सी है, उसको पूरा मैदान में डाल दिया। पैजा इसी तसा के वो मंत्र पढ़ने के बाद ख्याल में आता था, मैंने पट्टी दिमाग में आता था, समझ में आता था कि चल रहा है, ये सांप है। तो ख्याल पर उसने जादू किया। रस्सी तो रस्सी थी, वो कुछ बदला नहीं था, वो रस्सी जब सांप में तब्दील नहीं हुआ। यो खय्युल नातसा, ख्याल में आता था कि वो घूम फिर रहा है। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि अपनी लाठी को डालिए। अब पहले से ये नहीं बता दिया कि इसको पकड़ने से फिर लाठी हो जाएगी। अब जब डाल दिया और सब सारे सांपों को निगलना शुरू किया और उन जादूगरों की तरफ भी जब दौड़ा, तो उन्होंने कहा कि हमारी जान बचाइए, आप सही पर हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम को भी डर सा हो रहा है कि इतना बड़ा अजदा, इसको क्या करना होगा। कहा कि डरो मत, खुद जा वाला तकब। अगर डरे थे तब ने कहा कि ला तकब, वरना ला तकब क्यों कहते हैं। तो ये कहना डरो मत, उसको पकड़ लो, खुजा पकड़ो। पहले तो एक आग पकड़ो, तो आप पकड़ने पर तैयार भी, तो अंदर में डर लग रहा है। ला तकब, डरते क्यों, खुजा वाला तकब। अब आगे वादा करते सनोईदा सिरतलूला कि हम उसको पहले शकल पे ला देंगे। ये पहले पट्टी नहीं पड़ा के रखे थे अल्लाह पाक की, इस तरह क्यों होना है, ऐसे तुम करना है। कोई ड्रामा नहीं था, हकीकत का काम था। तो अब जब ये हकीकत वाला मुकाबला हुआ और सब जादूगरी को फेल कर दिया, जादूगर भी डर गए, तो खुद मूसा अलैहिस्सलाम को डर हो गया कि अब क्या करना पड़ेगा। तो आप खुदा पकड़ो उसको। तो अब अल्लाह का हुक्म था, तो काटे चाहे मारे चाहे निगल जाए कुछ, उसने पकड़ने की तरफ हिम्मत दिखाया, हाथ बढ़ाया, पकड़ना चाहा, खुदा ने उसको लाठी तब्दील कर दी। और फिर उसके बाद जो है समझिए कि वो लोग ईमान पर चले आए। तो मुआजिज़ा तो अल्लाह ने दिखाया, ये नहीं था कि मूसा अलैहिस्सलाम को ताकत थी कि वो लाठी को अपने इलम से उसको अजदा बना देते। अगर ऐसा था तो डरते फिर क्यों, अपनी ही बना चीज तो गुरूर रहता, ताकत रहती, हिम्मत रहती, ऐलान करके कहता कि हमेशा कर देंगे, लेकिन आपका कोई दावा कहीं पर नहीं लिखा है। तो अल्लाह की तरफ से मुआजिज़ा जाहिर हुआ, और जो जादूगरी में बड़े थे, टॉप थे, उसने समझ लिया कि ये जादू नहीं है, क्योंकि जादू में तो हम हर कला को जान ही रहे हैं। तो ये जादूगरी नहीं है, ये जादू से बढ़कर नबूवत वाली खुदाई ताकत है, इसलिए उसने ईमान ले आया। तो फिर हमने कहा कि हमारी इजाज़त के बगैर पहले तुम ईमान ले आया, तो अच्छा तुमको हम फांसी देंगे या करेंगे वो करेंगे। तो ईमान देना अल्लाह का काम है। तो मौजूदा उसने नबी से हाथ से दिखाया, और ईमान की हिदायत अल्लाह ने दिखाया। जिसको आप मुकाबला के लिए, उसको हराने के लिए, या उसको जलील करने के लिए आपने सामान बना, पूरा मुल्क मिलाकर, सल्तनत मिलाकर, हुकूमत मिलाकर ऐसा कर देंगे, एक लाठी से पूरे सारे मुकाबले हो गए। अल्लाह ने कामयाब कर दिया। यही नहीं, ये सोचेंगे कि एक मरतबा इत्तेफाक से ऐसा हो गया। अल्लाह ने उसी लाठी को जब समुंदर में गया, तो समुंदर में अभी कैसा होगा, इधर पीछे फिरौन की फौजा, इधर मूसा अलैहिस्सलाम बचने पर फिर मौत सबका, सारे लोग 11 लाख आदमी का मौत सर पे खड़ी है। अब क्या कैसे बचेंगे। जो भी खा पी रहे थे उन लोगों का कमा करके खा पी करके तो थे, और अब ये उनका साथ दिए, तो अब ये हो गया कि अब हमें भी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ क्या कर, अल्लाह अब कौम तो यही कह रहे हैं कि हम उनके घरों में काम करते थे, खाते पीते थे, आप मेरा साथ लेकर चलो, मेरे साथ में आपके साथ आ गए, अब आगे बढ़ते हैं, कश्ती आए नहीं तो आपको डुबाने का मतलब मारने का है क्या, और पीछे पलटते हैं तो लोग तो मेरे ही मारने के लिए जमा हुआ है।
کہا کہ جعفر مارو لاٹھی پانی میں لاٹھی مارا راستہ، بولا کہ نہیں ہم لوگ 12 خاندان کا آدمی 12 راستہ چاہیے، بیچ میں کھڑکی بھی چاہیے پانی میں، جو دیکھتے چلیں گے ہمارا سب ساتھی کیا نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے معجزہ اسی ایک لاٹھی سے کر دیا، ایک لاٹھی سے جادوگروں کو ہرانا، ایک لاٹھی سے طاقتور فوج کو اور بادشاہ کو پانی میں ڈبانا، اور اس کے بعد نشان عبرت بنا دیا الیوم ننجی کا بھی بدن کا، کہ آج ہم تمہارے بدن کو صحیح رکھیں لیکن تاکہ تمہارے سے لوگ نصیحت پکڑیں کہ ظلم کرتے تھے، اپنے کو خدا کہلواتے تھے، جو نہیں کہتا اس سے جان سے مارتے تھے، اور نہاتی لوگوں نے ان کو کساد دیا، اور اللہ نے اس کی فرعونیت بھی ختم کیا، ان کی ملک وہ بھی ختم کیا، وہ ملک بھی ان کو عطا کیا۔ تو اللہ چاہتا ہے تو کمزوروں کو اللہ تو خود مدد کرتا ہے تو وہ حاوی ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو دن ہے، دن ہم لٹ پلٹ کرتے ہیں۔ ہم نے اس کو عروج پہ لگا دیا تو فرعون وقت ہو گئے، ہم نے ان کو ڈبا دیا تو ختم ہو گئے قیامت تک کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا پیدائش سے لے کے اب تک ڈر رہے تھے، اللہ نے اس کو قابض بنا دیا، اس کو حکمراں بنا دیا۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ اس لیے اپنے دل کا تعلق اللہ سے ذکر کر کے جذبہ عشق کچھ دل میں پیدا کرو، روح کو ذکر مولا سے زندہ کرو، لو لگاؤ اسی ایک اللہ سے، غیر کو لوح دل سے مٹایا کرو۔ تو اس طرح سے اللہ سے لگاؤ رکھنا، تعلق رکھنا، ذکر کرنا، اس سلوک کے سلسلے ہیں جو زبان سے چاہے تسبیح کا پڑھنا، ذکر اس میں ذات کا ذکر کرنا، پاس الفاظ کرنا، ذکر قلبی کرنا، یہ سب اس لائن کے سلوک کی لائن کا، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا، احسان کا درجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سارے کارنامے ہوتے ہیں کہ اللہ کا ہمارا ہر وقت ساتھ ہوگا، اور پھر وہی اللہ پاک تمام چیزوں سے بچائے گا۔ تو یہ بتایا کہ تم جو ہے خوف بھی اسی کا کرو، الگ الگ روپ مت بناؤ کہ عبادت کا روپ الگ ہو گیا اس کو وہاں پوچھ لے، اور ڈرنے کا روپ الگ بنا دیا اس سے الگ ڈر رہے ہیں۔ تو یہ روپ الگ نہیں کرنا ہے، ایک ہی ذات ہے، وہی اللہ ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی مالک ہے، وہی قہار ہے، وہی جبار ہے، وہی سب کچھ ہے۔ یہ ان کے صفات ہیں، الگ نہیں ہے۔ الگ کرنے سے اور اس کا روپ بنا کے بنائے ہوئے روپ کو، رنگ روپ کو اس میں طاقت سمجھنا اور اس کو قریبی کا دریا سمجھنا غلط ہے۔ قرب کا دریا درجہ احسان ہے، تم اللہ کو سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس سے انسان جو لوگوں کا من زہے کا زوہے کا، جو دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، مقولہ ہے کہ اسے بھی دنیا مذاق سمجھتی ہے۔ بڑوں کا جو مذاق اڑاتا ہے تو سب لوگ جانتے ہیں کہ بڑے تو اچھے ہیں، اور یہ لڑکا جو مذاق اڑا رہا ہے یہی شرارت کر رہا ہے، تو سماج میں قوم میں اس کی عزت چلی جاتی ہے، اس کی عزت برقرار نہیں رہتی۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے بڑوں کا ساتھ میں جو ہے استہزاء کیا، مذاق اڑا۔ تو مذاق اڑانے والا ہمیشہ دوسرے سے ذلیل ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا گیا، اب انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ ایسا کام کر لو، تو کہا کہ اعوذ باللہ نکون من الجاہلین، آپ نے کیا مجھے جاہل سمجھا؟ کہاں پڑھے موسیٰ علیہ السلام، مجھے بتائیے تھے۔ اللہ نے پڑھایا تو کہیں تو پڑھنے گئے نہیں تھے، اور کہہ رہے ہیں مجھے کیا جاہل سمجھتے ہو؟ ہمارا جو مذاق اڑا رہے ہو، ہمارا مذاق مت اڑا، ہم کیا جائے، ہم مذاق کا نہیں کرتے۔ اعوذ باللہ نکون من الجاہلین، تو جاہل میں رہنے نہیں دیتا اللہ جس کو علم دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پڑھنے نہیں گئے، کسی سے کچھ پڑھا نہیں، لیکن تمام کتب خانے چند ملت بسوس، تو وہ جو ہے سمجھے کہ منسوخ ہو، تمام کتابیں منسوخ ہے، قرآن کے مطابق عمل کرنا ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ توریت کے بدلے میں عطا فرمایا، ان کی کارنامے کیا تھے اس قرآن میں کھولا۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، ہم اللہ سے قریب کب ہوں گے؟ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے،
اللہ قرآن جو ہے اللہ کی عبادت اس کا تقوی کے ساتھ کریں گے اور ڈر رکھتے ہوئے کریں گے کہ کہیں یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ یہ تو میں بندہ گناہگار ہوں، کمزور ہوں، اور میرا یہ کام کہاں اس لائق ہے کہ اللہ کی دربار میں پیش کیا جائے، یہ بھی ڈر کا سلسلہ ہے۔ تو اللہ اپنی قدرت سے، اپنے کرم سے اس گھٹیا چیز کے بنے ہوئے کو بھی اللہ قبول کر کے بڑا درجہ دیتا ہے۔ تو ڈر ہوگا تب نہیں، تو قبولیت کا یقین ہو، اپنے اس لائق اعمال کو نہ سمجھے کہ اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لائق ہے، اور اللہ کے ناراض ہونے کا، گرفت کا ڈر ہو کہ اگر غلط کریں گے نہیں تو اس کے حکم کی تعمیل کریں گے تو اللہ سے پکڑ ہے۔ غرض اللہ سے ڈرنا، اسی کی عبادت کرنا، اور اس کے صفات کو الگ نہیں سمجھنا، اس کا روپ نہیں بنانا اور پھر اس کی عبادت کرنے لگنا، یہ غلط طریقہ ہے۔ اللہ اپنی ذات و صفات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اسی یہ سارے صفات اسی میں ہے، ان سے ہی ڈرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا